Okay, good morning and welcome back. You had an extended break because of the unfortunate demise of our founder member, Amit. Anyway, life goes on. So things have restarted today now. We were doing RC circuits last class, and then we were doing internal view of current. तो उसमें हमने एक दो चीजें देखा था, and that is like this, that if there is a conductor, our topic of discussion was internal view of current. ठीक है ना? That was the topic of discussion. The internal view of current में ये था कि like if I current is flowing, suppose, and N is the number of electrons per unit volume. ठीक है? Then if area of cross section is A and the average velocity with which the electrons are moving is suppose Vd, that is called as drift speed. Then in that case, I will be equal to N E K Vd. So that's what the case is. And we also saw that Vt is equal to E tau by M. These are two things that we have done in the last class. Okay. Now from here we move on a little bit. कैसे? अब देखो, हमें पता है कि I को लिख सकता हूँ as N E A V D. Now V is actually E into tau by M. है ना? Now that is how it is. Let's define current density as I by A. Therefore, J will be equal to N square tau by M. Okay, N square E tau by M. But you know what? Electric field can also be written as, or sometimes let me write it as A only. I only let's write. We can also write I as V by L. So like this can be also written as P by L. ठीक है ना? तो I को मैं लिख सकता हूँ as V upon resistance, and resistance in this case will be rho L by A is equal to N square tau. Now E also can be written as V by L, isn't it? Into A by M. So L will get cancelled, this A will get cancelled, this B will get cancelled. Now 1 upon rho, that is 1 upon resistivity, is also called as conductivity sigma. So like rho is called as resistivity, so sigma is equal to called as conductivity. And resistivity, the units is ohm meter. So conductivity is ohm inverse meter inverse. Remember, now ohm inverse is generally written as mho, and meters in inverse is of course written as meter inverse. So these are ways of writing it, nothing specific. तो कंडक्टिविटी कितना हो गया फिर, है ना? ए स्क्वायर होगा, तो ये सब तो कैंसिल हो गया, यानी कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाय एम. ये आता है. ओके, तो सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाय एम. तो हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हो गए. एक तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी. वी डी खुद क्या है? ई टाउ बाय एम, और सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ बाय एम.
There are various ways of writing the same thing. Okay. We have also something called as mobility. Now, how do we get to that? अब देखो I को मैं लिख सकता हूँ as N E A V D और I को मैं लिख सकता हूँ V by R, where R is equal to rho L by A. Now this V by L, okay, V by L can be written as E also, so like it is equal to E A by rho, and 1 upon rho is sigma, so we can also write it as E A sigma. Because 1 upon rho means 1 upon resistivity, and 1 upon resistivity is conductivity. Conductivity is sigma. I've already written it. Now, if I look at these two expressions, this one and this one, I can cancel out A. So sigma will become equal to NE VD by A. Not A. Now, this is represented by a separate quantity called as mobility. So, mu. Mu is called as mobility, and the definition is equal to drift speed per unit electric field. So mobility is basically drift speed per unit electric field. So sigma is also equal to N E mu. Now that is like some kind of a summary chart of various internal parameters like mobility, drift speed. Okay, you have the conductivity, resistivity. Okay, relaxation time. So all these are interconnected terms, and as you can see, these are the relationships. Right? So let's proceed next. I would like to ask a question, and that is, suppose we have two resistors in series. These are resistors in series, same material, but with different radius and length. So this is R and this is L. This is 2R and this is 3R. The length is 3 times. Okay. Question is, find ratio of drift speeds. Now the same question can be asked in parallel also. So first do the series. And series wala. Find out the ratio of the drift speeds in the two conductors. Mind you, they are of the same material. Now you might see if they are of the different material, what change will happen? Well, in that case, N will be different. Isn't it? So number of electrons per unit volume will be different in each of them. Okay. So the key to the question is that same material, same temperature means N, that is the number of electrons per unit volume, will be the same for both. Go ahead. Okay. 16:1, I've got one answer. Anybody else? Only one answer has come till now. What about others? Answer karo. Aditya Mathur, Aryan, Arjun, Ayush, ये तो शुरू के हो गए. यश खुराना, वंश, सैयद सोम. आंसर नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा whether your thinking is on the right track? Please go ahead.
So now let me, I've given you sufficient time to think. Basically देखो सीरीज में क्या होगा ना, करंट सेम हो, है ना, कुछ भी हो जाए करंट सेम होना पड़ेगा। सेम मटेरियल में तो n सेम है, तो n e a will be pi small r square into vd, that is what is current, n e a vd has to be the same. So that will be equal to n e a into vd1 vd2. So therefore vd1 by vd2 will be equal to 4:1. Okay, Parth, Dev, yes, later on you have given the right answer. ठीक, correct answer. Fine, that's correct. चलो ठीक है, अभी काम करता हूँ मैं, इन्हीं को पैरेलल में रखी, ठीक है ना, इन्हीं को पैरेलल में रख लेता हूँ. Like this is one resistance, this is another resistance, इसका R और इसका L, इसका 2R और इसका 3L, सेम मटेरियल. तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सपोज है VD1 और यहाँ का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो है सपोज VD2. So question is the same. Question is the same, and that is fine. VD1 is to VD. Go ahead. Okay, एक आंसर आ चुका है 12:1. Rishabh Jain has given 3:1. Okay. Rishabh Jain has given 3:1. Shreyashi 3:1. Ansh has also given 3:1. Like 3:1 seems to be the more popular choice. Of course, there is nothing to choose. I mean, it's a matter of correct and wrong. है ना? चलो ठीक है, I've got some answers. Sneha Agarwal has also given 3:1. Aryan Jain 3:1. ठीक है, almost सारे 3:1 दे रहे हैं, तो presumably that must be the right answer. तो सबसे पहले तो इस बार करंट सेम नहीं होगा क्योंकि पैरेलल में है, तो करंट का रेशियो बने, है ना. अच्छा, क्योंकि सेम मटेरियल है तो देयरफॉर रेजिस्टेंस रेशियो निकाल लेते हैं. तो रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू रो L by pi r square upon rho L by pi r square, यानी आगे इक्वल टू 4/3. तो रेजिस्टेंस रेशियो हो गया 4/3. दैट मींस करंट रेशियो हो जाएगा इक्वल टू 3/4. ठीक है, सो I1 by I2 is equal to 3/4 and I1 will be equal to N E A into VD1 और इसका हो जाएगा N E A into VD2. That's right. ये 2 कैंसिल, 4 का 4 कैंसिल हो गया, 3:1, यानी VD1 is to VD2. बिल्कुल सही. ठीक, तो 3:1 most of you are getting. Deham, Parth, Sneha, etc. Everybody is now talked about only one answer, and that is 3:1. ठीक है, चलो, that's done. Let's now move on. That was about your internal view of current. Today we will be talking about electrical instruments. Today we will be talking about electrical instruments. Various instruments are there in this particular chapter, and we will talk about them. So we will talk about now electrical instruments. Okay. Now, what are the electrical instruments really? Number one is a galvanometer. And this galvanometer is actually a dual instrument in the sense that actually it is used to measure very small currents. So it's used to measure very small currents
generally in milliamperes. So a galvanometer will be used to measure very, very small current, generally milliamperes. But the problem is that in most of the cases, what we need to measure as current is in amperes. So this instrument cannot be obviously used, isn't it? Not only that, if you use to find out, if you let's say use this one to find out voltmeter as a voltmeter and there is voltage, you will be able to find out in millivolt in that range. So therefore, what I need is to convert this galvanometer into an ammeter or a voltmeter. So therefore, we need to convert this galvanometer to a voltmeter slash ammeter. Now let's understand the problem. Problem is that this galvanometer has a range. Let's call it as IG. So this is the range of the galvanometer. It's a very small galvanometer, generally in few milliamperes. Milliamperes. So that is your IG. This galvanometer also has an inherent resistance because internally, if you look at a galvanometer, internal, it will be actually nothing but a coil. So a coil, and there are certain magnetic features and all, which we'll be talking about in the next chapter. But the point is that there's a coil, essentially. That coil will experience some torque, and there's a deflection, which is proportional to the current, and that's what it measures. But that current has to be very small. So the high currents that we want to measure, it will fail. Means it might break. Okay. So the range of the galvanometer, suppose IG, and let's say the resistance of the coil of the galvanometer, suppose RG. And I need to convert it to suppose the ammeter, suppose has a range of I. So this is the required range. Required range. Okay. So the required range of the ammeter is suppose equal to I. And the range of the galvanometer as such is IG, with the resistance of the galvanometer is suppose equal to RG. That's what is given. Now, how do I convert? The problem is that if I attach it directly, so let's say an ammeter. Now, ammeter has to be connected in series with the circuit. But if I can say that let us say instead of ammeter, I use the galvanometer itself, then what will happen? There will be two large current passing through it, and it will break. So the coil will break actually. Why? Because the coil is designed for very small currents to tilt or twist or rotate. But if the current is very high, it will suddenly rotate and will break. So to save the instrument, what I do is that this is the galvanometer, okay, and parallel to that, I use a resistance called as shunt resistance. So this is IG, this is RGN. This is a parallel resistance. So this entire thing will now be called as ammeter. So effectively, what is there inside ammeter? Effectively, inside ammeter is a galvanometer with a shunt resistance in series. Actually, what is shunt? ये ना अंग्रेज जमाने का टर्म. अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन, तो अगर स्लो ट्रेन के पीछे फास्ट ट्रेन को लगा दो वो तो कभी भी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ट्रेन का ट्रैक कोई बस जैसा है नहीं कि साइड से निकल गया. तो इसलिए क्या किया जाता है कि ट्रेन के लंबे लंबे जो ट्रैक्स होता है ना, उसमें देखना कभी कोई बीच में ट्रैक से बाहर निकल के साइड में बना दिया ड्राइविंग ट्रैक, सो दैट वो जो स्लो ट्रेन है वो साइड से चलेगा और जो मेन ट्रैक है उससे फास्ट होके दूसरा वाला ट्रेन निकल जाएगा और फिर पहला वाला ट्रेन फिर वापस आ. सो दैट पैरेलल डिस्ट्रैक्शन और डिविएशन ऑफ द ट्रैक और अदर एन एडिशनल ट्रैक ऑन पैरेलल इज कॉल्ड एज शंट ट्रैक या शंटिंग कहते हैं इसको. ये एज आई सेड इट्स अ टर्म ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, उस जमाने का टर्म, ठीक है ना. सो दैट्स हाउ इट वाज यूज्ड. तो सेम यहाँ पे भी हम लोग करेंगे. यहाँ पे अगर इसके थ्रू अगर करंट जाता है तो ये तो खत्म होता है. तो हम चाहते हैं कि करंट यहाँ से मेनली चला जाए, थोड़ा सा यहाँ से भी जाए, थोड़ा सा यहाँ से भी जाए. there's a question and that is from Dev and that is ये IG क्या है. देखो मैंने क्या बोला कि गैल्वेनोमीटर सपोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जिस करंट पे दिखाता है दैट इज IG, यानी उस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम तुम IG करंट निकाल सकते.
या पास कर सकते, ठीक है ना, उस गैल्वेनोमीटर से तो मैक्सिमम आईजी करंट पास कर सकते, ठीक है। So that's how it is. So therefore what I will probably what I would do is that कि ऐसे कुछ गैल्वेनोमीटर को डिजाइन करें विद ऐसे कुछ रेजिस्टेंस RS, so that when the main current is I here, तो इसके थ्रू IG जाए, क्योंकि हमारा एमीटर का रेंज I है, यानी इससे ज्यादा करंट हमें मेजर करना नहीं। तो लेट अस से इसका रेंज है सपोज 10 मिली एम्पियर, मतलब एग्जांपल है 10 मिली एम्पियर, और तुमने क्या किया, ऐसे शंट रेजिस्टर लगा दिया कि टोटल यहाँ पे 1000 मिली एम्पियर पास हो सकता है। 1000 मिली एम्पियर मींस व्हाट 1 एम्पियर, या 10,000 मिली एम्पियर पास हो सकता है, 10 एम्पियर। तो इस तरीके से हम डिजाइन करेंगे सो दैट यहाँ पे जब 10 एम्पियर आए तो यहाँ पे तो मेरे 10 मिली एम्पियर ही जाए और बाकी शंट रेजिस्टेंस के थ्रू चला जाए, यानी मेजर करंट हम चाहते हैं शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाना। तो therefore RS has to be very low। क्यों? क्योंकि RS अगर वेरी लो होगा तब ना मेजर पार्ट ऑफ द करंट वहां से जाएंगे और थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर से जाएंगे और उसी के हिसाब से हम उसका मेजरमेंट करें। सो माय इंटेंशन इज कि जिस समय मेन सर्किट करंट आई हो उस समय गैल्वेनोमीटर से तो आई जी जाए, बाकी उधर से चला जाए, यानी यहाँ पे चला जाए I माइनस आई जी। अच्छा, हमें पता है कि पैरेलल रेजिस्टर्स में क्या होता है, करंट उल्टा रेशियो में होता है। तो देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर करंट का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा I माइनस आई जी बाई आई जी, पर वो रेजिस्टेंस में उल्टा हो जाता, ठीक है ना, रेजिस्टेंस में हो जाएगा RG बाई RS। तो देयरफॉर शंट रेजिस्टेंस RS कितना हो गया, IGRG बाई I माइनस आई जी। दिस इज योर RS। ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होता है IG और I में रिलेशनशिप क्या होता है, IG इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू I। तो कई बार हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं एज IG इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू I, so therefore RS is approximately equal to IGRG by I। क्योंकि I माइनस IG तो लगभग I के बराबर ही है, तो चलो I रहता है ना, यानी RS आ गया अप्रोक्सीमेटली ये बराबर IGRG by I। ठीक है, अच्छा चेक कर लो। This is basically your shunt resistance। तो ये था कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर into an ammeter, तो गैल्वेनोमीटर ऑफ रेंज IG into an ammeter of range I। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहली बात तो पैरेलल में शंट लगाना पड़ेगा, शंट का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए और उसका वैल्यू ये होना चाहिए, बट इसको अप्रोक्सीमेटली ये ठीक है, I माइनस IG is approximately equal to I। ये सारे इसके फीचर्स हैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। तो जैसे गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर कर सकते हैं ऑफ रेंज I, यानी 0 से लेकर I तक, जो हम लोगों का इंटेंशन था। सपोज इस बार मैं चाहता हूं कि एक वोल्टमीटर डिजाइन हो जाए जो कि मैक्सिमम V वोल्ट तक मेजर कर पाए यूजिंग द सेम गैल्वेनोमीटर। तो क्या करें, पहली बात तो याद रखना, वोल्टमीटर हैज टू बी अटैच्ड इन पैरेलल। तो अगर मान लो कोई रेजिस्टेंस ऐसे होता है तो वोल्टमीटर ऐसे अटैच, सो दिस इज योर वोल्टमीटर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, पता है प्रॉब्लम क्या है, कि वोल्टमीटर कैन नॉट बी ऑफ लो रेजिस्टेंस। क्यों? अगर वोल्टमीटर लो रेजिस्टेंस का होगा तो इन दैट केस देखो तुमको अल्टीमेटली क्या चाहिए, तुमको इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए ना। अब बताओ, अगर मान लो पहले करंट यूं जा रहा था तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ वोल्टेज था। अब अगर मान लो मैंने कुछ ऐसे कर दिया कि करंट अब यहां ना जाके मोस्टली यहां से चला जाए, तब तो सर्किट का पैरामीटर बदल गया। अब अगर तुम वोल्टेज सही मेजर कर भी लो तो भी वो गलत है, क्योंकि अब तो बिगड़ चुका है वोल्टेज। देखो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे कि मेनली करंट अभी भी यहीं से जाए, थोड़ा सा करंट वहां से चले जाए,
जिससे कि हम नाप लेंगे कि वोल्टेज, ये ध्यान रखना। यानी इस बार मैं चाहता हूं कि इस लाइन का रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इतना हाई तो है नहीं, जनरली मीडियम रेजिस्टेंस होता है या लेस रेजिस्टेंस होता है, इतना हाई तो होता नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बार जो आर अटैच करेंगे वो ऐसे अटैच, ठीक है ना। सो दिस आर विल बी एक्चुअली अटैच्ड इन सीरीज। चलो इसको भी आर एस नाम दे दो, वैसे शंट तो पैरेलल में होता है, तो आर सीरीज के लिए भी आर एस समझ इंटरप्रिटेशन करने में क्या जाता है। अच्छा माइंड यू, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं इस सेटअप के थ्रू, यानी इस वोल्टमीटर के थ्रू मैं मैक्सिमम वी वोल्ट मेजर करूं। दैट्स व्हाट माय इंटेंशन इज। So this is the voltmeter. This is the voltmeter. वोल्टमीटर के अंदर क्या है, तो इस बार हम लगाएंगे शंट रेजिस्टेंस या आरएस, जो भी कहना चाहते हो, सीरीज, एंड दैट टू वेरी हाई वैल्यू। क्यों? क्योंकि अगर ये हाई वैल्यू होगा, ये तो कुछ खास हाई होता नहीं है, तो मिला के बहुत हाई वैल्यू होगा, तो इसलिए इसके थ्रू करंट बहुत कम जाएंगे, यानी जो मेन सर्किट है उसी का करंट डोमिनेट करेगा। थोड़ा सा करंट ऊपर से भी जाएंगे, उतने से मैं जो है करंट का यूज करके वोल्टेज मेजर करूंगा। तो देखो व्हाट डू आई वांट, आई वांट कि जिस समय मैं V वोल्ट मैक्सिमम मेजर करना चाहता हूं, उस समय अगर V लगा रहा हूं, तो उस समय इसका करंट कितना होना चाहिए, IG। दैट्स व्हाट आई वांट। अगर इससे हाई करंट जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर से भी हाई करंट जाएगा? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। अगर मान लो इसके थ्रू आई करंट जा रहा है, तो इसके थ्रू जाएगा I माइनस IG और उसके थ्रू IG। दैट्स द फर्स्ट पार्ट। अब IG अगर वेरी लो होगा, तो I माइनस IG जो इसके थ्रू जाएगा, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली आई, तो उतना चलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दुनिया में ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस नहीं है या इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स नहीं है जहां पे ट्रू वैल्यू तुम निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट जैसे ही अटैच करोगे, कुछ ना कुछ तो बिगड़ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस बिगड़ जाएगा, कई बार वोल्टेज, करंट, कुछ ना कुछ बिगड़ेगा। तो जब बिगड़ जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर बिगड़ा हुआ चीज का वैल्यू तुम निकाल पाओगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ओरिजिनल तो निकाल ही नहीं पाओगे। सो दैट्स ऑलवेज अ डेफिसिट, एंड दैट्स ऑलवेज अ प्रॉब्लम, कि जनरली यही प्रॉब्लम हो जाता है कि जो है इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स में कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स तुम कर ही नहीं सकते। Because the moment you want to calculate something or find out something or measure something, you have to attach an instrument. An instrument will invariably have some resistance, and that's it. So that will change the circuit. But हाँ, इस तरीके से हम करें कि उस रेजिस्टेंस को ऐड करने के बाद भी चेंजेस बड़े नॉमिनल सब, कम सब, we have to always think in those lines. So therefore, इस बार क्या होगा ना, V वोल्ट पे IG करंट, यानी V by RS plus RG। इस बार पता नहीं RS क्या होना चाहिए, that has to be equal to IG। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ RS plus RG is equal to V by IG, यानी इस बार जो RS लगाऊंगा वो है V by IG माइनस RG। बड़ा सिंपल चीज, तो इस बार ये हो गया। अच्छा अब देखो इनका कंपैरिजन, कंपैरिजन क्या है ना, इन एमीटर एंड वोल्टमीटर कंपैरिजन इज वेरी स्टार्क। क्या है ना, एमीटर वोल्टमीटर, इसमें इन एमीटर RS is parallel to galvanometer, galvanometer के साथ शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, इसमें RS is in series with galvanometer। तो क्या पहला डिफरेंस। दूसरा, RS is very low, और इसमें है RS is very high। ठीक है। अच्छा एमीटर is attached या connected in series with circuit। हाँ, सीरीज विद रेजिस्टेंस मतलब जिस रेजिस्टेंस का करंट तो मेजर करना चाहते हो उसके साथ सीरीज में लगाओगे, जबकि वोल्टमीटर उल्टा उस रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे। सो दिस आर सम ऑफ द डिफरेंसेस। V is attached in parallel with
रेजिस्टेंस और सर्किट। ठीक है, लास्टली मैं एक सवाल पूछूंगा, तो इसका सोच के जवाब देना। इज दैट इन इंस्ट्रूमेंट्स को अटैच करने से जो मेन सर्किट करंट उसका क्या होगा? जैसे अगर एमीटर अटैच करते हो तो मेन सर्किट करंट का क्या होगा? मान लो कोई सर्किट चल रहा है, इंस्ट्रूमेंट मान लो तुमने लगाया नहीं, बट सर्किट तो ऑन है, तो कुछ ना कुछ करंट होगा। मेन करंट की बात कर रहा हूँ। ये बताओ कि अगर मैं एमीटर जोड़ता हूँ तो मेन करंट में क्या चेंज आएगा, और अगर मैं वोल्टमीटर जोड़ता हूँ तो इन दैट केस मेन करंट में क्या चेंज आएगा? बता सकते हो? यस, व्हाट इज आंसर? क्वेश्चन इज एमीटर अटैच करो तो मेन सर्किट करंट में क्या चेंज आता है, और वोल्टमीटर अटैच करो तो मेन सर्किट करंट में क्या चेंज आता है? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, अंश has given the answer कि करंट डिक्रीजेस और सेकेंड में इंक्रीज करेगा। ठीक, I think that's obvious. Why? Because see, the emitter will be attached in series in a circuit. सीरीज में अटैच होगा, तो अगर सीरीज में अटैच होगा तो नेचुरली क्या होगा? ओवरऑल रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा एज ए फ्रैक्शनल आई डोंट नो, बट कुछ तो बढ़ेगा। तो ओवरऑल करंट क्या होगा? जो मेन सर्किट करंट है वो डिक्रीज करेगा और अटैचिंग एमीटर। और वोल्टमीटर पैरेलल में होता है, और पैरेलल में होते क्या होता है? रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है उल्टा। सो देयरफॉर आई विल से मेन करंट decreases on attaching ammeter. Whereas here, main circuit current increases. अब थोड़ा सा ही होगा चेंज, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? Current increases on attaching voltmeter. ठीक है, please have a look. Okay, Garv also say the same thing, and that is ammeter के केस में तो करंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, यू आर राइट। तो एमीटर के केस में क्या हो रहा है ना, करंट डिक्रीज कर रहा है, और वोल्टमीटर के केस में क्या होगा? करंट इंक्रीज करेगा ऑन अटैच। जस्ट ठीक है, चलो। सो दैट वाज अबाउट योर conversion of a galvanometer into an ammeter and a voltmeter. ठीक है, वैसे अनदर टॉपिक। ये एक इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, एक और इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, वो है मीटर ब्रिज। ओके, नाउ व्हाट इज अ मीटर ब्रिज रियली? मीटर ब्रिज एक्चुअली एक 1 मीटर रेजिस्टेंस वायर से बनता है, इसलिए उसका नाम है मीटर। मीटर ब्रिज इसलिए क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, इफ आई कंबाइन द टू आइडियाज, मीटर 1 मीटर का वायर, या जनरली 1 मीटर के मल्टीपल में वायर, और एक हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है, इसलिए मीटर। क्या पर्पस है? टू फाइंड आउट, फाइंड और कंपेयर अननोन। देखो ऐसा है कि अगर एक नोन रेजिस्टेंस हो जाए ना, इन दैट के सारे अननोन रेजिस्टेंस निकल जाए। एक नोन चाहिए बस। और मान लो सारे अननोन है, ठीक है, इन दैट केस कंपैरिजन, ये 2:3 है, उसका रेशियो 5:1 है, इसका रेशियो 3:7 है, जो भी होगा वो कंपैरिजन निकल जाएगा। फाइंड और कंपेयर अननोन रेजिस्टेंसेस। टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस यू जस्ट नीड वन नोन रेजिस्टेंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। अभी इसका सेटअप कैसे होगा, है ना? बड़ा सिंपल सा सेटअप है। लेट अस से ये मीटर ब्रिज है, और यहाँ पे एक नॉन रेजिस्टेंस,
और यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस, सो आर के आर यू, ठीक है। आर के मीन्स द नोन रेजिस्टेंस एंड आर यू इज द अननोन रेजिस्टेंस। अब ये मीटर ब्रिज है तो एक सर्किट बना देता हूँ, सेल वेल लगा देता हूँ जैसे होता है नॉर्मली। उससे क्या होगा ना, करंट यहाँ से आ जाएंगे और फिर एक गैल्वेनोमीटर एक रेजिस्टेंस भी साथ में लगा दो, और फिर यहाँ पे टैपिंग करो, इसको हम लोग कहते हैं टैपिंग। टैपिंग करके चेक करो कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आ रहा है या नहीं। चलो लेट्स एज्यूम कि आ रहा है, तो लेट्स से द गैल्वेनोमीटर रीडिंग इज लाइक दिस। टैप करके रोक के मत रखो, जस्ट हल्का सा टैप करके छोड़ दो, उससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर यूं करके वापस आ जाए ऐसे। चलो अब पता तो चला ना कि यानी यहाँ पे करंट है। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा और इधर ले जाता हूँ, इधर नहीं, मैं से उधर क्यों नहीं, उधर भी ले जा सकता हूँ, डिपेंड करता है। समझ में, इधर ले गया। पिछली बार क्या हुआ था, गैल्वेनोमीटर ऐसे रीडिंग दिखा, तो टैप करके छोड़ दिया मैंने, तो गैल्वेनोमीटर ऐसे दिखा। इस बार ऐसे दिखा और ज्यादा, पिछले बार तो ऐसे था, इस बार ऐसे हो, यानी इस बार रीडिंग ज्यादा आ रहा है, यानी उस तरफ अगर जाओगे तो करंट बढ़ता जा रहा है। दिस इज नॉट द राइट डायरेक्शन। यू हैव टू डिक्रीज करंट एंड फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड एज अ नल पॉइंट। यानी बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड आउट नल पॉइंट। तो अगर मान लो यहाँ पे टैप करने के बाद कुछ एक डिफ्लेक्शन दिखाया और यहाँ पे टैप करने के बाद डिफ्लेक्शन और बढ़ गया, यानी गलत दिशा में जा रहा है, फिर उल्टा जा। और अगर मान लो पिछले बार डिफ्लेक्शन ऐसे था और मैं थोड़ा सा इधर आया और डिफ्लेक्शन कम हो गया, यानी हम सही दिशा में। फिर एक काम करो, ऐसे टैप करते करते और उसी तरफ चलो, और अगर करंट बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली तो टैप करते करते दूसरी तरफ चलो। तो लाइक डिपेंड करता है, फ्रॉम एक्सपीरियंस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि हमें एग्जैक्टली किस तरफ जाना है, इस तरफ या उस तरफ जाना, वो तो डिफ्लेक्शन देख के पता चलता है। नाउ लेट्स से the entire length is suppose 100 centimeter, और let us say ये जो टैपिंग लेंथ है ये सपोज नल पॉइंट, सपोज, so this is suppose the नल पॉइंट। तो वो नल पॉइंट है सपोज एट L, ये जगह 100 माइनस L। तो R की दैट इज नोन रेजिस्टेंस अपॉन अननोन रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, L upon 100 minus L. So R unknown is equal to R known into 100 minus L by L. So this is basically how we can find out the unknown resistance. But for that, you need to have one known resistance. अगर मान लो दोनों अननोन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर होगा आर यू बाई आर के इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल। तो उससे क्या होगा ना, रेशियो आ गया, एटलीस्ट अननोन रेजिस्टेंस भले ही हो लेकिन रेशियो आ गया, तो पता चल गया कि हाँ इससे बड़ा है छोटा है। वो अलग बात है कि इससे रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, बट चलो ठीक है। इफ यू डोंट हैव एनी नोन रेजिस्टेंस, तब हम कैसे एक अननोन रेजिस्टेंस निकालें, वो तो नहीं कर सकते। बट एक नोन अगर रेजिस्टेंस हो जाए तो दूसरा आ जाएगा, फिर उसको यूज करें, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर क्या है ना, कोई भी अननोन रेजिस्टेंस हो, कितने भी हो, निकाल सकते हैं। वी जस्ट नीड वन नोन रेजिस्टेंस, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। ये हो गया नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें इसमें होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं कि एक मीटर ब्रिज है, ऐसे होता है मतलब। अच्छा, मेरे पास दो रेजिस्टेंस है एक्स एंड वाई। जब मैं दोनों को सीरीज में लगाता हूं और एक नॉन रेजिस्टेंस यूज करता हूं सपोज 40 ओम, और जब सीरीज में लगाता हूं तो इसका टैपिंग होता है
at 90 and 10 जब मैं सीरीज में लगा और जब मैं इन्हीं दोनों को पैरेलल में लगाता हूं वही 40 ओम से ये आ जाता है यहां दैट इज 20 and 8. Question is find x and y. Go ahead. ठीक है तो यानी बेसिकली क्या है ना x plus y by 40 is equal to 90 is to 10 यानी 9 यानी x plus y is equal to 360. That's the first thing. और दूसरा है xy by x plus y है ना xy by x plus y upon 40 okay is equal to 20 is to 80. That will be like 10 है ना अच्छा xy कितना है सॉरी x plus y कितना है 360 यानी xy आ गया इक्वल टू 360 into 10 that is equal to 3600. आई थिंक कुछ भी ले लो जैसे x को ले लेता हूँ 360 minus y यानी 360 minus y into y is equal to 3600 यानी y square minus 360y plus 3600 is equal to 0. I think that's it. Y is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a यानी 180 plus minus under root of 4 से अगर मैं करता हूं तो that is 2 से 180 का स्क्वायर माइनस 4 से हुआ माइनस 36 ठीक है ना तो रेस्ट इज अप टू यू ये दो वैल्यूज आएंगी एक x और एक y ये यही दोनों वैल्यूज आएंगी लाइक यू कैन टेक कॉमन आल्सो जैसे इसमें मुझे दिख रहा है कि लाइक वी कैन टेक 60 कॉमन 60 और कॉमन लेता हूँ 9 minus 1 8 तो 120 रूट यानी 180 प्लस माइनस 120 ठीक है 180 प्लस माइनस 120 रूट बिल्कुल सही आंसर है दैट वाज अबाउट योर पैरेलल अच्छा इसमें कई बार क्या होता है कि इस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए to increase the accuracy of the instrument what is done is that there are turns made ठीक है तो मैं उस पे भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं that is let's say these are the turns okay and this is where the galvanometer is showing null point ये नॉन रेजिस्टेंस है 40 ओम और ये अननोन रेजिस्टेंस और वो फाइंड आउट करना ठीक है अच्छा एक एक वायर जो है ना 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये जो टर्न्स है ये 1 सेंटीमीटर ईच है ठीक है और इधर से ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन इज द सेम फाइंड आउट आर यू
The question is the same. Find out RU. ठीक है, एक और आया, वो सिमिलर आंसर है, थोड़ा सा डेसिमल में अंतर है। एक आंसर आ रहा है 47.5 और एक आंसर आ रहा है 47.3। ठीक है, so like R known by R unknown will be 40 by RU is equal to इधर का लिंक अपन इधर का। अब इधर का लिंक कैसे होगा? 100, 200, 300 और इधर से 80। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये है ना, इधर से कैलकुलेट हो तो 100, 200, 300, 80 और साथ में 1, 2, 3, ठीक है ना, यानी 383। ठीक है, so therefore R unknown will be equal to 40 upon 383 into, अब इसका देखो क्या हो रहा है ना, इसका होगा 100, 200, 320, so therefore this will be 320, यानी 40 into 320 और साथ में 1, 2, 3, तो 323, so therefore R unknown will be equal to 40 into 323 by 380। ज्यादा करो, वो कैलकुलेशन नहीं है। ओके, यू डिडंट टेक द विड्थ, बट देन विड्थ अगर ना भी लो ना तो भी दिक्कत है, तो 320 और 380 मुझे लगता है शायद तुम लोगों ने गलती से अपोजिट कर दिया। चलो कोई नहीं। नाउ Ansh has also given the refreshed answer. In the meanwhile, Sagarika and Aryan Chen have also given the same answer, that is 33.7. ठीक है Aryan, you also need to change your answer. अच्छा, अब तो चेंज कर दिया, चलो ठीक। I think this is what is approximately turning out to be 33.7. So approximately 33.7. देखो ऐसा है ना, अगर तुम लेंथ का कैलकुलेशन एक बार माइंड में कर लो तो एटलीस्ट यू कैन एलिमिनेट सम ऑफ द चॉइसेस। क्यों? क्योंकि 40 के ऊपर तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि इस बार अननोन वाला साइड भारी है, सॉरी अननोन वाला साइड हल्का है और नोन वाला साइड भारी है, क्योंकि वो 380 वाला टाइप। तो देयरफॉर आर अननोन हैज टू बी लेस देन आर नोन, इतना तो मुझे पता चल गया, ठीक है ना। तो आर अननोन विल बी इन दिस केस लेस देन आर नोन इन दिस केस इज 40 ओम, इतना तो पता चल गया था, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन है तो लाइक यू कैन गेट द आंसर एज 33.73, ठीक है। And we are supposed to find out the unknown resistance, of course, and the galvanometer point is here at 20 centimeter, and of course no need to say this is 80 centimeter. Question is, find the error in R unknown. R unknown में एरर निकालो, या एक काम करें, इसमें भी कुछ एरर डाल देता हूँ, 40 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है ना, ये गिवन है। तो R known is 40 plus minus 0.02 ohm, and this is the ratio between 20 and 80, ठीक है। You have to find out the error in R unknown. Go ahead. क्या देखो, मैंने तो नोन वाले में भी एरर डाल दिया, और अगर मैं नोन वाले में एरर नहीं भी डालता, सपोज अगर मैं उसको परफेक्ट भी मानता, तो भी एक एरर आता अननोन, वो कैसे है ऑल सोचो। खैर अब तो मैंने इसमें भी डाल दिया एरर, अब तो इसमें भी डाल दिया, वो एक अलग पॉइंट है, बट आता ऐसे बात is Sagar is asked another question, that is, are the lengths which are measured error free? Well, lengths when measured can never be error. उसके लिए अगर याद होगा हमने कुछ कंसेप्ट डिसाइड भी किया था, डिस्कस भी किया कि हम उसमें एरर कैसे चूज करते हैं या डिवाइस करते हैं। एक्चुअली क्या देखो, ये तो पता ही है कि R known by R unknown is equal to in this case 20 by 80, बट एक्चुअली ना मैं इसको लिखूंगा L1 by L2 फिलहाल,
मुझे मालूम है कि L1 20 है और L2 80 है, बट फिलहाल मैं लिख रहा हूँ L1 80. So therefore you have R unknown, है ना, is equal to R known into L2 by L1. अब मैं लिखूंगा relative error in R unknown. So the relative error in R unknown is equal to relative error in R known plus relative error in L2 plus relative error in L1. अब देखो, याद करके देखो, haven't we decided that least count is supposed to be the error in an instrument? तो अगर ऐसे करता हूँ, तो that case relative error in R known क्या हो जाएगा? तो R known तो दे रखा है 0.02 by 40 plus relative error in L2. Now L2 is actually 80. So that's equal to 0.1 centimeter by 80 centimeter plus 0.1 by 20 centimeter. So that is equal to 2 by 4,000, यानी 1 by 2,000 plus, है ना, plus 1 by 800 plus 1 by 200. Obviously फिर इसमें 4,000 का वो आ जाएगा, तो 4,000 करो तो 2 plus 5 plus 20, है ना, यानी that is equal to 27 upon 4,000. That is the relative error. ठीक है, ये हो गया R unknown का relative error. अब R unknown का बेसिक वैल्यू क्या है? तो बेसिक वैल्यू तो known is 40 into L2 80 by L1. ठीक है, is 20. That is equal to 160 ohm. ठीक है, so therefore error in R unknown is equal to 27 by 4,000 into 160, है ना, तो 160. अब 4 से कर लो तो ये 100 हो जाएगा, और अगर 4 से करो तो 4, तो 27 into 4 by 100, is it? यानी 108 by 100, यानी 1.08. ठीक है, तो therefore finally हम क्या लिखेंगे ना, R unknown को as equal to 160 plus minus 1.08. ठीक है, so that is the answer to this question, and that is the error in this will be equal to 1.08 ohm. That's the first thing. और अगर रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो हम का जो वैल्यूज आ रहा है अमोन का, तो बेसिक वैल्यू तो आ रहा है 160, वो 40 को यूज करके और ये 20 और 80 वगैरह यूज करके, तो बेसिक वैल्यू तो 160 आ रहा है, लेकिन रिलेटिव एरर के चक्कर में ये थोड़ा इन्फ्लेटेड हो जाता है और यू नो चेंज हो जाता है, रादर दैट इज 160 प्लस माइनस 1.08. आई होप कि 1.08 का कैलकुलेशन समझ आ गया होगा. तो एरर क्या होता है ना, रिलेटिव एरर इनटू बेस वैल्यू. तो रिलेटिव एरर इस केस में अगर देखोगे तो रिलेटिव एरर देखो तो 27 by 4,000 इनटू बेस वैल्यू इज 160, तो उससे 1.08 आ. ठीक है, दैट इज एरर. इनफैक्ट पता है इसमें मैं ना एक चीज और पॉइंट आउट करना चाहूंगा, इज दैट कि जरा सोचो कभी, जस्ट थिंक ऑन दिस कि बैलेंसिंग पॉइंट, ठीक है ना, माय क्वेश्चन इज where should the balancing point be for minimum error? Can you tell me that? कि बैलेंसिंग कहां होना चाहिए कि एरर मिनिमम हो? देव सेज कि रिलेटिव एरर वाली इक्वेशन कैसे लिखा समझ नहीं आया. तो देखो रिलेटिव एरर तो मालूम है ना, चाहे प्रोडक्ट हो या डिवीजन, हो, रिलेटिव एरर ऐड होता है. यहाँ पे तीन चीजें हैं, देखो आर अननोन में तीन चीजें, एक नोन है, एक L2 है, एक L1. ये तीनों में एरर है. नोन में भी एरर है थोड़ा सा, L1 में एरर होगा क्योंकि ये 1 मिलीमीटर का एरर होता है, लीस्ट काउंट का एरर मानते हैं. इसमें भी एक 1 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट का एरर है. तो देयरफॉर रिलेटिव एरर इन नोन प्लस रिलेटिव एरर इन L2 प्लस रिलेटिव एरर इन L1.
अब L1 20, L2 80 तो और लीस्ट काउंट ऑफ मीटर ब्रिज इज व्हाट? नॉर्मल मीटर ब्रिज में लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर. तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. इसलिए हम एरर भी 1 मिलीमीटर की लेंगे. ठीक है ना? एंड सो ऑन. सो लाइक दैट इज द वे टू गो अहेड. ठीक है? इससे क्या हो गया ना? एरर इन आर अननोन आ गया एंड दैट इज इक्वल टू, सो देयरफॉर आई कैन राइट द आर अननोन एज 160 प्लस माइनस 1.08. ठीक है? एक बार से देख लो. ओके, आंसर इज गिवन कि हाँ ये 50 होना चाहिए. ओके, एक्चुअली यू आर राइट. एक्चुअली क्या है, देखो कि हमें टोटल 100 हमेशा ही चाहिए, मतलब हमेशा चाहिए क्या मिलेगा. तो L1 और L2 जो है टोटल 100 हो, यानी जो एरर आएगा वो आएगा 0.1 सेंटीमीटर बाय L1 प्लस 0.1 सेंटीमीटर बाय L2, है ना. L1 L2 इन सेंटीमीटर. मिलीमीटर में करो तो फिर 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2, और L1 प्लस L2 तो हमेशा 100 ही हो रहा है, या जो भी टोटल होगा डजंट मैटर. तो ये मिनिमम कब होगा, है ना, क्योंकि दोनों मिला के 100 होना. अच्छा, अगर एक नंबर छोटा हो जाता तो डिस्प्रोपोर्शनेटली एरर का जो रिलेटिव वैल्यू है वो बढ़ जाता. इसलिए अगर तुम मिनिमम एरर स्टेज चाहते हो तो योर बैलेंसिंग ऑन द नल पॉइंट शुड बी एट 50 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर फॉर मिनिमम रिलेटिव एरर द नल पॉइंट should be at midpoint. ठीक है, तो null point should be at midpoint. This is for minimum relative error. देखो अब देखो एग्जैक्टली मिड पॉइंट तो मतलब वो है कि हो तो ज्यादा अच्छा है. अगर मिड पॉइंट हो तो एटलीस्ट मिड पॉइंट के आसपास. सो लाइक प्रैक्टिकली है ना, we should try for null point near midpoint for minimum. अगर तुम किसी सिचुएशन में मिनिमम एरर चाहते हो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में, then your null point should be near the midpoint of the meter bridge. ठीक है ना? चलो ठीक है. So like that's it what we have in store for as far as today is concerned. आज हम लोगों ने बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट तो कर दिया, एक आधी इंस्ट्रूमेंट अब रह गया, and after that the chapter will end. I mean, so like hopefully by tomorrow we will be able to end the chapter. Maybe we can do 1 or 2 questions based on that this chapter, and then we will call it curtains. Fine. चलो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं. We'll continue tomorrow. Fine. With the other instrument that is called as potentiometer. ये था meter bridge. There is a counterpart other instrument which is similar to this, same name, similar to this, and that is called as a potentiometer. Fine. चलो आज के लिए इतना ही. Have a good day. Bye bye. Thank you.